Am I audible? Suprabhatam. Before I start with the lecture, I would like to pay some tribute to my God. Vasudeva Sutam Devam Kamsacharuna Mardara Devaki Parmanandam Krishnam Vande Jagadguru. The today's topic is basically directed to my Guru, because of whom I am here to deliver this lecture in front of all of you. And the world's the so elegant means very great guru is none other than Krishna. So let me start with our lecture. I'm sure you are audible at last. Yes, sure. इथे स्लाइड चेंज नहीं होता, नहीं इथे नहीं होता. ठीक. So the today's topic is Vidyarthi to Vaidya. It's okay that I will speak in Marathi or Hindi. Huh? Hindi? How much of your? चलो ठीक है. We'll do that. We'll keep in English and Hindi. Okay, चलेगा. सो विद्यार्थी से वैद्य, ये बहुत ही टर्मिनोलॉजी है, मतलब इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लाइफ में, स्पेशली व्हेन यू कमिंग फ्रॉम सम डिफरेंट ब्रांच. कैसा है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें टिल 12th आप लोगों को इतना कुछ पढ़ाया है जिसके बेसिस पे आप एक एमबीबीएस का डॉक्टर बन सकते हो, आप डेंटिस्ट्री का डॉक्टर बन सकते हो, आप नर्सिंग कर सकते हो, आप बी फार्मा एम फार्मा कर सकते हो, आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, बट यू कांट बी अ आयुर्वेदिक डॉक्टर. उसका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं रहता. वी डोंट हैव एनी बैकग्राउंड लोअर स्टैंडर्ड में या फिर 11th में 12th में. आई डोंट थिंक अभी जस्ट लेटेस्ट हम लोगों ने एनसीईआरटी की बुक्स में कुछ टॉपिक्स ऐड किए, बट इसके पहले तो कुछ भी नहीं था. ओके, सो आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव भी है और इंस्पिरेशनल भी है. सो विल थिंक अबाउट इट. विद्यार्थी जो आप लोग हैं अभी, और वैद्य जो आपको भविष्य में होना है. मैं जानबूझ के जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ, डॉक्टर नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं क्या यूज कर रहा हूँ? वैद्य. इट हैज गॉट इट्स ओन मीनिंग. ठीक है, ये संस्कृत का टर्मिनोलॉजी है. वैद्य ये विद शब्द से बना हुआ है. ठीक है, विद का मतलब होता है समवन हु एक्वायर लॉट ऑफ नॉलेज, समवन हु नोज द थिंग्स. ठीक है, सो हियर अ वैद्य मीन्स अ फिजिशियन. ओके, so here you are, you can see the two pictures, very funky hairstyle, dressing sense and everything. And after some days, some years, you will become like a physician, like how I am settled here. Huh? You can see me. You can see my dressing sense here. ठीक है, so you have to be like this. ये आपके एटीट्यूड में आएगा. एंड बिफोर बिकमिंग अ वैद्य, you have to change your attitude, your talking style, your dressing sense, everything, and it will be get changed automatically. You not have to take any effort. Don't worry. So, it's good. Okay.
So when you take admission to this BMS course, the first question raised is, have you taken the admission by choice or by chance? Huh? I was too. It's a nothing new in there. Means from today's almost 13-year back, I was also the kind of student who was came to Ayurveda by chance, not by choice. Almost 99% people comes to Ayurveda just by chance because they just missed the MBBS seat with some marks or BDS seat with some marks. And especially you people who comes in a government Ayurved college, they are considered to be the cream because you scored a good marks rather than those students who deserve their admission in private colleges. Okay, so बाद में यही होगा, you will at the end you will get frustrated, कुछ लोग frustration में होंगे कि कहीं पे एडमिशन नहीं मिल रहा है। आप लोगों में से कितने लोगों ने रिपीट किया है? हाँ, ऑलमोस्ट almost all. This is the very normal scene. Don't worry about it. It's a normal thing. मतलब आप लोगों ने कितनी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स कितने किए रहेंगे? वन टू वन. I had did my 2 times attempts, and in that gap I was doing my BSc. हाँ, and why I was doing BSc even means physics, chemistry, and zoology. I took those 3 subjects and just plain BSc. So target, what was the target? कि उस टाइम पे AIPMT हुआ करता था, नीट ऐसा कॉमन एग्जाम नहीं था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। सो उस टाइम के लिए महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस से बाकी का सिलेबस, AIPMT का सिलेबस हार्ड होता था। तो मैं BSc का फिजिक्स केमिस्ट्री इसलिए पढ़ रहा था ताकि मेरा 12th का एग्जाम इजी जाए। हुआ नहीं वैसा कुछ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एट द एंड आया मैं BMS को ही, एंड जबरदस्ती पापा ने ऐसा, मतलब डॉक्टर तो बनना है जा, धकेल के, मतलब कि मतलब डॉक्टर बनना है ना, एट द एंड क्या है कि पेशेंट के सेवा करनी है ना, पेशेंट देखना है ना, डॉक्टर बनना है ना। हाँ, तो हो गया तेरा 2 अटेम्प्ट हो गया, अब तू जा, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर आई एम नॉट गिविंग एनी गारंटी टू यू। सो एडमिशन होने के बाद 7 डेज का आपको गैप मिलता है जिसमें आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना पड़ता है। मैंने न्यूज घर पे 6th डे बताया कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। लॉट्स ऑफ अब्यूज, पापा ने बहुत गालियां दी, एंड ऑन द वेरी 7th डे आई गोस टू कॉलेज एंड जस्ट टुक द एडमिशन। वेरी 7th डे, लास्ट डे, बहुत गालियां सुनी थी उसके लिए, मुझे पता है। एंड ऑन 17 September 2011 आई टुक एडमिशन इन BMS। सो सेम चीजें जो आपके साथ हो रही हैं, बाय चांस, फ्रस्ट्रेशन, फियर ऑफ अननोन, दैट इज संस्कृत। हाँ, क्योंकि नहीं था, बहुत सारे, बहुत कम बच्चे होंगे जिनको 10th में संस्कृत लिया था, बट फियर ऑफ अननोन नहीं है वो। ऐसा मुझे भी लगा था, अब मुझे लगता है कि वो अपना है, बहुत अपना है। आपका आत्मा जो है ना, इनर सोल, दैट इज संस्कृत। सो उससे डरो मत, बिल्कुल भी नहीं डरना है। इट्स अ ग्रेट ग्रेट लैंग्वेज, सुपर लैंग्वेज इन दिस यूनिवर्स। अच्छा, मेरे मन में एक ऐसा शंका होता था, डाउट आता था मेरे को, कि MBBS में जो बच्चा एडमिशन लिया, अगर उसको इंग्लिश नहीं आती है तो वो इंग्लिश का क्लास लगाता है क्या, या फिर उसको इंग्लिश का अलग से लेक्चर चलता है? नहीं चलता ना, वो सीख जाता है बाद में धीरे धीरे। लेकिन हमको आयुर्वेदा में आए हैं तो हमको अलग से संस्कृत क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि हमको संस्कृत नहीं आता, उसका ABCD भी नहीं आता। हमें संस्कृत कितना पढ़ना है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, संस्कृत इज वेरी वास्ट, उसका साहित्य एंड ऑल वो बहुत कुछ है। आपको संस्कृत उतना पढ़ना है जिससे आपको आपके आयुर्वेदा के टेक्स्ट इजीली पढ़ते आए। ध्यान में रखो, संस्कृत बहुत वास्ट है, बहुत कुछ पढ़ सकते हो, आप BA MA PhD कर सकते हो संस्कृत में, लेकिन आपको कितना पढ़ना है? आपके जो टेक्स्ट है ना, चरक संहिता नाम सुना है? हाँ, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, ये सारे के सारे जो मेन ग्रंथ है, दे आर रिटन इन संस्कृत। तो वो संस्कृत हमको समझ में आ जाए करके, उतना संस्कृत तो आना चाहिए, और उतना सीखना है हमको। और वो बहुत हार्ड नहीं है, सिंपल है। दूसरी चीज, BA BCom BSc,
ग्रेजुएशन कोर्स है। आपका बीएमएस का कोर्स या फिर एमबीबीएस का कोर्स भी क्या है? ग्रेजुएशन कोर्स है। वो बीए बीएससी बीकॉम से यहाँ पे स्टडी ज्यादा करना पड़ता है क्या सर? यस, ज्यादा करना पड़ता है। मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, हाँ करना पड़ता है। उनका बीए बीकॉम बीएससी 3 साल में खत्म हो जाता है, आपका 4.5 ईयर लगता है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने को, प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप लगता है। तो टाइम भी ज्यादा लग रहा है, एजुकेशन भी ज्यादा है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। हार्ड है क्या? हाँ थोड़ा सा हार्ड है, बट आप उसको और ज्यादा हार्ड बना देते हो बिकॉज यू डोंट स्टडी। आप उससे डरते हो, आप उसको काम को टालते हो। आज निकल करेंगे, छोड़ना हार्ड लग रहा है, डोंट डू दिस। आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो जैसे जैसे ये करिकुलम खत्म होगा ना, बैक टू योर सब्जेक्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। यू हैव गॉट अ गुड एंड टैलेंटेड टीचर्स along with you. Take help of them and just flow out through it. नेक्स्ट जो है, वरीड अबाउट फ्यूचर। एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है यार। आयुर्वेदा में तो आ गए, एमबीबीएस का सीट मिस कर गया। एमबीबीएस का सीट मिस कर गया करके ना, तो वो और ज्यादा दिमाग में जाता है कि अ, अब मेरा कुछ श्योर नहीं है। आयुर्वेदा में आ गए, पता नहीं, मतलब पहले तो एक अरमान थे ना एमबीबीएस की सीट में। एमबीबीएस मिल गया मतलब गाड़ी बंगला सोने की चैन एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल सब एवरीथिंग। आयुर्वेदा में आए, पता नहीं अब फ्यूचर कैसा होगा, भगवान जाने। धनवंतरी जी संभाले। मैं आपको ना, फ्रॉम दिस डायस, फ्रॉम दिस डे, आई एश्योर यू, आपको ना मन लगा के पढ़ाई करो। हमारे सर बता देते हैं। ये क्या है? घर। सब मिलेगा, सब मिलेगा, आई एश्योर यू। जरा सा भी इसके ऊपर संशय मत लो इस बात का। बिल्कुल डाउट नहीं, नॉट एट ऑल। मिलेगा मतलब मिलेगा, डैम श्योर मिलेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। I completed my internship. I given NEET examination and I got selected for the MD in Potar. My first stipend, do you know how much? At that moment, 2017, first stipend of my PG was 55,000, and now it is 85,000, 85 to 90,000, and that will be bonded to you for 36 months. अभी आपकी एजुकेशन एमडी की हुई नहीं है, एंड द एजुकेशन इज गिविंग यू दैट मच अमाउंट पर मंथ, 85,000। बाय द टाइम यू पीपल रीच दैट एमडी, इट विल बी मोर देन 120 or 130 almost. So there are things, and it is same as the MBBS candidate get, उतना ही एमबीबीएस वाले को भी मिलता है, उतना ही, नॉट लेस देन नॉट मोर देन, सेम अमाउंट। One of my sir in Pune, sir, he's a Vaidya. He has three BMW, one Mercedes. पुणे के बानेर का जो एरिया पता है, पॉश एरिया थोड़ा सा, वहां पे उनका 3 BHK का फ्लैट है। सो ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं है, बहुत कुछ है, और बहुत कुछ मिल जाएगा। तो अपने फ्यूचर को लेके परेशान मत हो। परेशान आज के लिए रहो, आज के सब्जेक्ट के लिए हो, कि उसको कैसे और ब्राइट बनाना है। ठीक है? कंपेयर विथ एमबीबीएस छोड़ दो। मुझे भी लगा था कि यार, एक होता है ना कि अब मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज रहेगा कि मेरी एमबीबीएस की सीट नहीं मिली यार मुझे। मुझे क्या बनना था पता है? मैंने 3 बार मैंने 3 बार एग्जाम दिए, 2 साल मैंने रिपीट किया। क्यों किया? जस्ट आई वांट टू बिकम अ सर्जन। सादा नहीं, कार्डियक सर्जन।
लेकिन आज मुझे उसका जरा सा भी गिल्ट नहीं है, बिकॉज टिल नाउ आई हैड सेव्ड ऑलमोस्ट 15 to 20 कार्डियक अरेस्ट. Not a guilt at all. I'm doing my job in that way only. So I'm doing my job and in a more efficient way. आने के बाद 3-4 महीने बाद ना मुझे सच में ऐसा फील हुआ कि नहीं, दिस इज द थिंग विच आई वांटेड एंड आई गॉट इट. बोलते हैं ना कि अ, आप एडमिशन नहीं लिए हुए यहाँ पे, ये जगह, ये क्लास, ये फील्ड आपको बुलाया है. ध्यान में रखो, डेस्टिनी फिक्स्ड होती है. आपको कुछ टाइम के लिए, कुछ मोमेंट के लिए ऐसा लगता है यार बहुत रॉन्ग हो गया अपने के साथ, बहुत बहुत बैड हो गया है. कुछ नहीं, वो कुछ टाइम जब जाओगे और उसके साथ जब आप सिंक्रोनाइज्ड हो जाओगे ना, यू विल कम टू नो कि नहीं यार, दिस प्लेस वाज मेड फॉर मी. ये जगह सिर्फ मेरे लिए बनाई गई थी. जस्ट थोड़ा सा उसके साथ सिंक्रोनाइज होना सीखो. आप सिंक्रोनाइज नहीं हो पाओगे तो डेफिनेटली यू विल बी आउट ऑफ द बॉक्स. बहुत अलग चीजें होंगी. सो बी सिंक्रोनाइज विद दैट. सिंक्रोनाइजेशन का मतलब समझ रहे हो ना? सब्जेक्ट के साथ में रहो. ठीक है, जो चीजें टीचर्स बोल रहे हैं उसको फॉलो करो. एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करो, है ना? ठीक है. सो डोंट ब्रिंग एनी काइंड ऑफ इंफीरियर कॉम्प्लेक्स, डिप्रेशन एंड नथिंग. आगे बहुत कुछ दिखाने वाला हूं. एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपके दिमाग से इंफीरियर कॉम्प्लेक्स, डिप्रेशन सब निकल जाएंगे. बिल्कुल भी नहीं रहेगा, डोंट वरी. सो द बेसिक प्रश्न, क्वेश्चन, व्हाई टू बिकम अ डॉक्टर और अ वैद्य, क्यों यहाँ पे क्यों आए भाई? मतलब आपको ठीक है, आपका एमबीए एमबीबीएस का सीट हुक गया, लेकिन फिर भी एमबीबीएस मतलब डॉक्टर क्यों होना था? व्हाई यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर? दैट इज अ बेसिक क्वेश्चन. डॉक्टर ही क्यों होना है? यस, एनी वन ऑफ यू. मैंने वहां पे बहुत सारे रीजन लिख रखे हैं, आपका इसमें से क्या है? हाँ, फेम, पैसा, ग्लैमर. पहला क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी? मनी. अरे तो कॉमर्स वाले जाके ज्यादा कमा लेते हैं. ट्रेडिंग में जाके आजकल स्टॉक मार्केट में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 10 साल 12 साल के बच्चे ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड दे आर अर्निंग मोर. व्हाई यू चूज दिस टॉपिक ओनली? मतलब इजी मनी है वहां पे. यहाँ पे तो आपको कम से कम 10 साल घसना पड़ेगा बॉस, ऑब्वियसली. मतलब सिर्फ प्लेन यूजी तो करोगे नहीं, उसके बाद मास्टर्स भी करोगे, है ना? डिग्री अच्छी रहेगी तो. क्यों यही फील्ड क्यों? हाँ. हाँ. रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. और सबसे पहले डेफिनेटली मनी है. एक टाइम था जहां पे गुरुकुल में गुरु आपको ये विद्या विदाउट एनी पैसे का दे देते थे. आज नहीं है. यहां तक जो पहुंचे हो ना, इसमें से कोटा वाले कितने? एलन वगैरह, रेजोनेंस, विद्यालंकार, नहीं है आप में से. सो मुंबई में तो उधर वगैरह में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, दे आर महाराष्ट्रियन बट दे आर रिटर्न फ्रॉम कोटा. दे वर इन कोटा. वहां की फीस वगैरह कितनी, 11th 12th की फीस कितनी, कितना मेहनत किया, कितनी बार रिपीट किया है. सो वो सारी चीजें इसमें बैक में लग जाती है. पढ़ाई में जितना पैसा खर्चा किया है, पूरा पैसा निकालना है, ऐसा पेरेंट्स का एक मैसेज रहता है ना? सो मनी एंड द सेकेंड इज द वेल्थ एंड हेल्थ. डॉक्टर बन जाओगे, कम से कम घर वालों को तो हेल्दी रखोगे, आप खुद हेल्दी रहोगे, डॉक्टर के पास जाने का पैसा नहीं रहेगा. हाँ. आपको पता है इन द वर्ल्ड हु आर वेरी हाईली पेड, दो लोग सबसे ज्यादा हाईली पेड है. एक न्यूरोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन, और अ गुड आयुर्वेदिक वैद्य. हाईली पेड पीपल. यू कांट इमेजिन हाउ मच दे अर्न. द थर्ड वन इज द फेम, पैशन, ग्लैमर. हो सकता है आप में से किसी का हो कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है, हमारा पैशन है सर,
पैसा वगैरह नहीं चाहिए। पेशेंट को ठीक करने का जो बोलते हैं ना, एक सेटिस्फेक्शन, इंटरनल सेटिस्फेक्शन। आई वांट टू बी अ वैद्य और डॉक्टर सर। मेरे गांव में दे हैव स्टोरी आल्सो, मेरे गांव में कोई डॉक्टर नहीं था वगैरह वगैरह वगैरह, फैमिली में कुछ ट्रॉमा हुआ रहेगा, एंड देन आई थॉट कि नहीं, मुझे डॉक्टर होना है, मुझे लोगों को सर्विस देनी है। हो सकता है दैट मे बी वन ऑफ द रीजन। फेम, ग्लैमर, आपने मूवीज देखे होंगे, ऑपरेशन थिएटर के बाहर सर्जन बाहर निकलता है, एंड देन हैव यू सीन द गुड डॉक्टर का वेब सीरीज? हाँ हाँ हाँ, यस यस। कितना फेम होता है उसको, जबरदस्त। यस। तो ये भी एक होता है, ग्लैमर होता है। डॉक्टर है, सर्जन है, अंदर गया, ओटी में से निकला, यहाँ से निकला। मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा? आर्य है, धमाल पिक्चर है। इट्स अ गुड मीन्स लर्निंग मूवी, वेरी लर्निंग मूवी। ग्लैमर कितना होता है, आज तुम चार बड़े बड़े हॉस्पिटल से तुम्हारा टाइप है, तुम्हारे पास फोर व्हीलर है, तुम्हारा ड्राइवर है, तुम एक हॉस्पिटल से निकल रहे हो, दूसरे हॉस्पिटल में जा रहे हो, जस्ट यू डूइंग सर्जन, सर्जरी दे रहे हो, यहाँ पे कंसल्टिंग कर रहे हो। ग्रेट थिंग। एंड द लास्ट वन इज द satisfaction that you get while treating the patient। आप अपने पेशेंट को ठीक कर रहे हो। बेसिकली क्या होता है ना, कि आपके पास जब क्लिनिक में, अभी आप जैसे जिस कुर्सी पे बैठे हो, उस कुर्सी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो गद्दे वाली कुर्सी होती है, चक्के वाली कुर्सी, है ना, व्हील्स वाली, ऐसे गोल गोल घूमती है। देखा है डॉक्टर की चेयर, देखा है कभी डॉक्टर के पास जाके? इट्स गुड लुकिंग कुर्सी, वेरी कंफर्ट। उस कुर्सी की बात कर रहा हूँ। द डे यू सिट ऑन दैट चेयर ना, द पेशेंट which comes in front of you, he is going to ask you only one thing, डॉक्टर मैं कब ठीक होऊंगा, मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, कब ठीक हो जाऊंगा, द डे आफ्टर टुमारो, और टुमारो आई हैव टू ज्वाइन माय जॉब। बच्चा रहेगा, नहीं सर मेरा कल पेपर है। and you have to be enough capable to answer him. So while you're sitting here now, prepare yourself. He's never going to ask you whether doctor you have been आपको फर्स्ट ईयर में केटी लग गया था क्या, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक था, ऐसा कोई कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। व्हाट ही विल गोइंग टू आस्क यू, मैं कब ठीक होऊंगा। और ये करने के लिए, बताने के लिए आपको अंदर से कॉन्फिडेंट चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ बैठो मत, डोंट सीट ओनली, ठीक है। यू शुड बी अ डिजर्विंग टू दैट चेयर। ये a person starts doing a work, there are three reasons: अभाव, स्वभाव एंड द प्रभाव। मुझे लगता है इन तीनों शब्द के मीनिंग आपको पता होंगे। इट इज रिटन इन इंग्लिश बट मीनिंग यू गॉट, हिंदी मराठी सबको समझ में आया। द अभाव, द वेरी फर्स्ट थिंग, किसी के पास कोई चीज नहीं होती इसलिए वो काम करता है, स्टार्ट करता है काम करना, इंटरेस्ट दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द यू पीपल हैव लैकिंग ऑफ मनी, नहीं सर घर की गरीबी दूर करनी है इसलिए मुझे डॉक्टर बनना है, आई एम फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली सर, एंड डॉक्टर्स अर्न गुड, एंड दैट्स व्हाई आई हैव टू बिकम अ डॉक्टर। या फिर हो सकता है सर मेरे गांव में कोई डॉक्टर नहीं है, मैं यहाँ से डॉक्टर बन के अपने गांव में जाऊंगा, एंड आई विल गिव दोस फैसिलिटी टू माई पीपल फ्रॉम माई होम विलेज। दिस इज कॉल्ड एज अभाव। हो सकता है आप में से कई लोगों के ये इश्यूज होंगे। द सेकेंड वन इज द स्वभाव, आपका नेचर, आपका नेचर। नहीं, मैं बचपन से सर, मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में था तभी से मेरे मन में था कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है। मुझे इंजेक्शन से डर नहीं लगता, मुझे टैबलेट से डर नहीं लगता, मैं ब्लड देख लूं तो भी मुझे डर नहीं लगता, मुझे डॉक्टर बनना ही है, मेरे नेचर में, मेरे ब्लड में, मुझे बनना ही था, डॉक्टर बनना ही है सर, मेरा नेचर है। उनको कोई कारण नहीं चाहिए, ये सेल्फ स्टीम्ड होते हैं। पढ़ बोलना नहीं पड़ता इन, स्टडी कर रहे बाबा, नहीं मेरे को होना है, मेरे को जाना है, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। एंड द लास्ट वन इज द प्रभाव, व्हेन यू कम्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ समवन,
When you see such a good doctor in your area or any hospital, where such a doctor is providing a good facilities to their patient, and you people just came influence of them. No, I want to be like him. I want to be like him. For me, the influencer was at that moment was Neetu Mandke. नीतू मांडके नाम पता है? हाँ, he was a famous cardiac surgeon. He did his MS from Sassoon, है ना? And he died because of cardiac arrest. Yes, a very great surgeon who did cardiac surgery of Balasab Thackeray and everyone. Very great surgeon. So आजकल तो आपको ये सब चीजें यूट्यूब पे नहीं मिलेगी इन्फ्लुएंस करने वाली जो मैं बात कर रहा हूँ। आपको वैसे अप्रोच रखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है। सो प्रभाव जो होता है हो सकता है किसी के भाई बड़े भाई या फिर आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो, क्लासेस लगाए थे ना 11th में, वहां पे कोई सीनियर है जो इसका सिलेक्शन हो गया, तो आप उसके इन्फ्लुएंस में आते हो, नहीं मुझे उसके जैसा बनना है, ही गॉट सेलेक्टेड देयर, आई आल्सो वांट टू बिकम लाइक। आपके पापा आपके चाचा, हो सकता है कोई फैमिली में डॉक्टर हो, सो दैट इज द प्रभाव, एंड देन यू स्टार्टेड वर्किंग। तो ये तीन चीजें ध्यान में रखना, ये तीनों को छोड़कर कोई कुछ भी काम स्टार्ट नहीं करता। सो बेसिकली अगर हम लोग बीएमएस डॉक्टर हो भी जाते हैं, व्हाट वी प्रैक्टिस, सो ईदर वी प्रैक्टिस प्योर आयुर्वेदा, कंप्लीट आयुर्वेदा, or we practice pure allopathy. In Maharashtra, it is sanctioned. You can practice pure allopathy. In Maharashtra, there is a one body called as the MCIM, that is Maharashtra Council of Indian Medicine, which allows you to practice allopathy medicines also. हाँ, एकदम धुआंधार एज कंपेयर टू एमबीबीएस। हाँ, लेकिन एमबीबीएस हाँ सर्जरी वगैरह नहीं हो, स्पेशलिस्ट सर्जरी की बात नहीं कर, or we do integrated means we give ayurveda also and allopathy means when the patient comes we used to ask आपको ayurveda चाहिए कि allopathy चाहिए, so patient बोला कि नहीं डॉक्टर, I have some severe issues and I have some allergy with the modern medicine, so give me the ayurvedic one. You are enough efficient to give the ayurvedic medicine, you give, that's it. So basically, in today's society, the Ayurvedic people or the person who get the BMS degree, they basically practice in these three ways. They practice pure Ayurveda, pure allopathy, or integrated, both combined. But today here I am to talk on pure Ayurveda. मैं आपको एलोपैथी की तरफ नहीं लेके जाऊंगा, मैं आपको इंटीग्रेटेड की तरफ भी नहीं लेके जाऊंगा, एंड इट हैज अ रीजन, lots of reason, and that I will explain why. So, how to practice a pure Ayurveda and become Ayurvedic Vaidya? We don't use word doctor. Doctor का meaning different है, वैद्य का meaning different है, ध्यान में रखो. It is more efficient. So, the preparation from Vidyarthi to Vaidya start from very day first of your college. अभी तो चल रहा है करिकुलम, इट्स ओके, बट वेरी फर्स्ट डे जो चालू होता है वो आपके फर्स्ट डे से ही आपका विद्यार्थी टू वैद्य का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। कैसे? तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि यू मस्ट ज्वाइन क्लिनिक। यस, आई एम सेइंग दिस, you must join clinic and ayurvedic clinic. Why? Look, this field is not a, मतलब ये चार दीवार में बैठ के पढ़ाने वाला और आपके पढ़ने वाला साइंस नहीं है, इट्स अ कंप्लीटली प्रोफेशनल। और आप क्या बोल रहे हो,
उसके ऊपर आपके पेशेंट के साथ आपका कम्युनिकेशन डेवलप होता है। आपके पास पेशेंट आया, यू आर टॉपर इन योर क्लास, गोल्ड मेडलिस्ट। पेशेंट आया, डॉक्टर पेट में दर्द हो रहा है, रुक जा बैठ, let me turn out some pages from Charak Samhita, let me see the Udarshul. Udarshul, I will read the shlok and you will get treated. Is it like that? No. आपको नॉलेज पहले से एक्वायर होना चाहिए। पेशेंट आने के बाद आपको एग्जामिनेशन स्टार्ट करना है, यू हैव टू स्टार्ट द मेडिसिन। ये कैसे करोगे? आपको क्या लगता है इंटर्नशिप आप फाइनल ईयर तक करते रहो, फिर इंटर्नशिप कर लो एंड देन विद इन 1 ईयर यू बिकम अ वैद्य? नॉट पॉसिबल। If you're thinking this, then I'm sorry. You have to go clinic from day one. Day one. कब जाने का सर? दिन भर तो कॉलेज रहता है। शाम को, इवनिंग में। कॉलेज का टाइमिंग कितना? 9 से 5, 9 से 4, वॉटेवर। शाम को 5 से या फिर 6 से 9 बजे तक क्लिनिक में जाने का। दिस इज कॉल्ड एज अ ऑब्जर्वेशन। क्या कहते हैं इसको? ऑब्जर्वेशन। व्हाट यू पीपल सपोज टू डू देयर, यू हैव टू गो देयर with the permission of that particular Vaidya. कि sir, I want to come as a observer to your clinic. He will ask you कि sir, नहीं, he will ask you कि in which year you are. You must say, sir, I am first year. He will again say, go now and come after once you reach in second year. No, sir, I want to join from first year. वो मना कितना भी करेंगे, उनको बोलो सर रोज नहीं आता, एक दिन छोड़ के एक दिन आता, बट गिव मी परमिशन टू कम हियर। छोड़ना नहीं है, बहुत मना करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप। बट व्हाट डू यू हैव टू से? नहीं सर, फिर 2 दिन छोड़ के आता हूँ, एक दिन हफ्ते में तो आता हूँ। गो देयर, मस्ट बी। इसमें से जो लोगों को आयुर्वेदा नहीं करना है, एटलीस्ट एलोपैथी का तो ज्वाइन कर लो। हाँ, नहीं करना है, नहीं करना है, इट्स ओके, मेरी बात आपको नहीं पटेगी, हो सकता है, बट डिसाइड एट द एंड ऑफ द लेक्चर। ठीक है? सो दैट इज वन ऑफ द थिंग। तो यहाँ पे आपको क्लिनिक ज्वाइन करना है। Secondly, history of Indian Gurukul system. That's very important thing that I want to lay down here. अभी आप लोग क्लासरूम में हैं, क्लास लेक्चरर आते हैं, एक लेक्चर आता है, लेक्चर चला जाता है, अनदर लेक्चरर आता है, अनदर टॉपिक शुरू होती है। ये सिस्टम ऑफ मेथड नहीं था पहले। Almost before Britishers came here, almost 250 years ago, we had a proper Gurukul system of study. These Britishers rule over the India. They travel all over the India and they came to understand that कि यहाँ का अगर मुझे चीजें अगर खराब करनी है तो सबसे पहले मुझे इनकी एजुकेशनल सिस्टम डिस्टर्ब करनी होगी। एंड दे डिड इट वेरी वेल। उनको ऐसा समझ में आया कि यहाँ पे हर गांव में एक अच्छा गुरु होता है हु इज एक्सपर्ट इन सर्टेन सब्जेक्ट, एंड विदाउट चार्ज, विदाउट एनी फी, he asks student to sit there and he teach them। ऐसा उनको समझ में है। और स्टूडेंट उनके पास तब तक रहता है जब तक वो टॉपिक उसको बहुत अच्छी तरह से नहीं आ जाता। इट मे टुक 11 to 12 years फॉर देम। एज के 6 साल से शिष्योपनीय नाम का एक संस्कार होता है। एट द 6th year ऑफ द एज, उस टाइम पर होता था, माता पिता बच्चे का मुंज करके गेरुआ वस्त्र पहनाकर गुरु के पास उसको दान दे देते थे। वो बच्चा जो है वहां से लेके 25 साल तक, जिसको हम लोग ब्रह्मचर्य नियम बोलते हैं, हमारे पास 4 प्रस्थ होते हैं, जो उसमें से पहला ब्रह्मचर्य होता है, ठीक है, दूसरा संसारिक होता है जिसमें विवाह इत्यादि होते हैं, तीसरा वानप्रस्थ होता है, द लास्ट में जो संन्यास। पहला जो होता है उसमें विद्या ग्रहण करने का कार्य ज्यादा होता है।
वेरी अर्ली ऑफ द एज बच्चे को घर से निकाल दिया जाता है। वो जो होम सीकर्स होते हैं उनकी तो होता है, कुछ दिन स्टार्टिंग में लगता है, लाइक सुदामा एंड कृष्णा हैड लर्न इन दिस वे ओनली, सांदीपनी ऋषि के आश्रम में। द सांदीपनी वाज द टीचर देयर। या फिर राम एंड लक्ष्मण वेयर इन द वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ के पास थे, एंड दे लर्न द टॉपिक। मतलब मैं सिर्फ आयुर्वेद के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, धनुर्विद्या है या फिर शिल्प है या फिर रसायन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, ये सारी चीजें उनको वहां पे सिखाई जाती थी। सो दोज ब्रिटिश, दे जस्ट ब्रोक इट वेरी रैंडमली, एंड उन्होंने पूरा एजुकेशन सिस्टम ही डिस्टर्ब किया। हमारे सर पुणे में एक बहुत ही फेमस वैद्य है, हु ट्रीट अस्थि भग्न बाय आयुर्वेदिक मेथड्स। ही इज फेमस फॉर दैट, वैद्य त्रिलोक धुमेश्वरकर। उनका एक छोटा सा डायलॉग है विच आई वांट टू पुट हियर। जिसकी सत्ता होती है उसका राज्य होता है, जिसकी सत्ता होती है उसका राज्य होता है, और जिसकी भाषा होती है उसका शास्त्र होता है। हमारी भाषा ही खराब की गई, एंड द बेसिक वो संस्कृत। हमारे सारे टेक्स्ट, दे डिस्ट्रक्टेड इट, मतलब कि उन्होंने इंग्लिश ले डाउन किया, और भी बाहर के लैंग्वेज आए, और हमारा एक्चुअल शास्त्र जो है वो अलग निकल गया। नालंदा विद्यापीठ का नाम अगर आप लोगों ने सुना होगा, चार विद्यापीठ थे, उसमें से एक नालंदा, द वेरी फेमस वाज तक्षशिला, जो आज का लाहौर है, एंड द सेकंड वाज नालंदा विच वाज इन बिहार। इतने आयुर्वेदिक संस्कृत में लिखे हुए वहां पे टेक्स्ट थे, नॉट आयुर्वेदिक, ऑल सब्जेक्ट्स, जिसको मोहम्मद गजनी ने जला दिया। इतने ज्यादा अमाउंट पे वो टेक्स्ट थे कि वो एक बार जले तो 1.5 महीने तक वो जलते ही रह गए थे, इतने ज्यादा टेक्स्ट थे। तो किसी भी साइंस को उसके लैंग्वेज से जज मत करना, as because your Ayurvedic text is written in Sanskrit, and that's why it has a very low potency, इसमें थातुर मातुर लिखा है कुछ, ऐसा बिल्कुल भी मत समझो। अगर आप ऐसा समझ रहे हो, या फिर ऐसा समझने की वजह से डिप्रेशन में हो, तो यू आर अ सिली पर्सन, दैट यू विल कम टू नो डे ऑन, जैसे जैसे टाइम जाएगा ना आपको पता चलेगा हाउ टैलेंटेड दीज पीपल वेर हु हैड रिटन दिस शास्त्र, and how lucky you are that you people got to learn this thing. सो एक विद्यार्थी से वैद्य बनने में जो एक ट्रेवल होता है, उसमें कई चीजों की जरूरत होती है। द फर्स्ट थिंग इज द गुरु, गाइड, मेंटर, और एक छोटा सा चीज लगता है जिसमें हम लोग बोलते हैं अध्यात्म। गुरु, गाइड, मेंटर आपको समझ में आते हैं, आपके क्लास टीचर हो सकते हैं, या फिर जिसके यहाँ पे आप क्लिनिक में जाओगे वो वैद्य हो सकते हैं जो आपको सिखाएंगे। और वो एग्जैक्ट टाइम पे मिलना बहुत जरूरी होता है। लाइफ में अगर सही मोमेंट पे गुरु ना मिले ना तो आप भटक जाते हो रास्ते से। मैं आज यहाँ पे हूँ इज बिकॉज ऑफ माई गुरु। इट्स अ वेरी क्रिटिकल एंड डेलिकेट पॉइंट। और गुरु तब मिलता है ना जब आपका खुद का एफर्ट अच्छा हो। आप सोचोगे कि मैं यहाँ से 9 से 5 का क्लास छूटा, घर पे जाके चादर तान के सो जाऊं, खत्म बात, फिर आप गुरु नहीं मिलने वाला, मतलब भूल जाओ। यू हैव टू टेक एफर्ट। एक्स्ट्रा गेस्ट लेक्चर्स कॉलेज में ऑर्गेनाइज होंगे, कहीं पे पुणे में या फिर कहीं पे दूसरे वैद्यों के लेक्चर्स होंगे, आपको इंफॉर्मेशन आएगा, आपके टीचर्स बताएंगे।
ये आपका काम है कि वहां पे जाके वो लेक्चर अटेंड करना। संडे है, सर रेस्ट चाहिए, नहीं उस दिन लेक्चर है पुणे में कहीं पे, जाके अटेंड करना लाइव। डेडिकेशन चाहिए। अनदर थिंग इज अध्यात्म। आयुर्वेद जो शास्त्र है ना स्टूडेंट्स, ये आपने मैंने या फिर किसी व्यक्ति ने लिखा है ऐसा नहीं है। यू नो देयर आर फोर वेदास। यस, विच आर दिस? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड, हाँ, उस अथर्ववेद का जो सबसे लास्ट वाला आपने बताया उसका उपवेद है आयुर्वेद। उपवेद का मतलब होता है सब पार्ट। वेद आर अपौरुषेय। वेदास आर अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब होता है नॉट रिटन और मेड बाय एनी पुरुष। किसी व्यक्ति, किसी पर्सन द्वारा बनाया हुआ नहीं है। उसमें जो थॉट प्रोसेस है, जो इंटेलिजेंसी का काम है, वो हमारे लेवल पे पॉसिबल ही नहीं है। सो एक्चुअली यू आर स्टडिंग वेदास ओनली, सब पार्ट ऑफ अथर्ववेद। सो वी कंसिडर आयुर्वेदा का ओरिजिन जो आयुर्वेद में बताया, इट्स केम फ्रॉम ब्रह्मा, द होल एंड सोल क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। उसने बनाया नहीं, उसने लाया। मतलब उसके पहले भी आयुर्वेद एग्जिस्ट करता था। एंड वो ब्रह्मा और बाकी के जो लेवल है ना, वो शरीर के लेवल पे नहीं है। वो आपके शरीर, आपके मन, आपके बुद्धि के ऊपर है। वो आप कह सकते हो आत्मा के लेवल पे है, एट द लेवल ऑफ योर सोल, प्योर सोल। So if you don't have a touch of Adhyatma, it will be quite hard and boring for you to study Ayurveda. So take my word, एक take home message है. Whatever caste, religion you people have, I don't know. But at least you will read one page daily from your religious text. Daily. Because those texts will took you to Atma and Adhyatma. Yes, if there are Bible, there are Quran, there are Bhagavad Gita, whatever. But read daily at least one page. कुछ नहीं, ये आदत लगाओ, आपको थोड़ा सा मदद होगा इसमें। थोड़ा क्या, बहुत मदद होगा, आपको समझ में आएंगी चीजें थोड़ी सी। दूसरा चीज है टाइम मैनेजमेंट। मैंने बताया कि क्लिनिक अटेंड करना है, एवरीथिंग अटेंड करना है। कैसे पॉसिबल है? सुबह 7 बजे उठना, मैं अपना टाइम बता रहा हूँ, दैट आई फॉलोड फ्रॉम माई वेरी फर्स्ट ईयर। 7 बजे उठना, हाँ 7 बजे, बहुत जल्दी नहीं उठना, 7 बजे उठना, क्योंकि मुझे रात को, नाइट को लेट होता था। 7 बजे उठना, 1 घंटा आधा घंटा जो है थोड़ा सा स्टडी करना एटलीस्ट। नहाना धोना, नित्य योगासन करना। इसमें स्टेमिना की बहुत जरूरत होती है, बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट होने वाला रहता है, अलग अलग टॉपिक्स दिमाग में आने वाले होते हैं। तो स्टेमिना और ग्रास्पिंग पावर जितना ज्यादा बूस्ट करके रखोगे उतना बढ़िया है। प्रिपेयर्ड रहो कि आज आने वाला है अच्छा खासा। तो थोड़ा सा ध्यान बोलो या फिर योगासन बोलो, कंटिन्यूसली सीट पे बैठना है, तो आदत लगाओ उस चीज की। सेकेंडली, आप कॉलेज में एक बार आ गए 9 बजे, 9 बजे क्लास में आने के बाद आपको जो भी लेक्चर चल रहा है उसको उसी समय खत्म करो, टॉपिक। नहीं इसको मैं घर से जाके अलग से प्रिपरेशन, आप वो लेक्चर होने से पहले पढ़ के आओ, दैट इज वन ऑफ द थिंग। क्योंकि टाइम नहीं मिलने वाला, क्योंकि 5 के बाद तो आप क्लिनिक जाने वाले हो। वहां से 9 बजे तक क्लिनिक करोगे, 8:30 बजे तक क्लिनिक करोगे, आओगे घर पे, दिन भर का सुबह का निकले हुए हो, हाथ पैर धोगे, खाना खाओगे, और आपको सिर्फ क्या चाहिए? बेड।
पढ़ने का मन नहीं करेगा, डेफिनेटली नहीं करेगा। एंड यू पीपल घर पे फोन पे बात करना, इधर उधर कुछ करना है, 11 साढ़े 11 तक सो जाओगे, 11 तक, एंड डेफिनेटली फिर 7 घंटे की नींद तो चाहिए। होलसम स्लीप चाहिए ना, आगे नॉलेज अगर एक्वायर करना है तो। नींद अगर पूरी नहीं होगी तो फिर गए आउट ऑफ द बॉक्स। आपका स्लीप अगर अच्छा है ना, तो जो ग्रास्पिंग आपका 2 घंटा 3 घंटा लगता है, वो आपको 1 घंटे में कर लोगे। अगर स्लीप कम इनकम्प्लीट है, इट विल टेक मोर टाइम, ग्रास्पिंग ही नहीं होगा, फिर उसका कोई यूज नहीं है। वो एक चीज है। एंड अटेंड क्लिनिक अपार्ट फ्रॉम द कॉलेज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लिनिक जाने के बाद ठीक है, 6 महीना 1 साल तक आप ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व क्या करना है, जो सर है मैडम है जिनके यहाँ पे क्लिनिक जा रहे हो, वो पेशेंट से कैसे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं, आई टू आई कांटेक्ट कैसे कर रहे हैं, नाड़ी कैसे देख रहे हैं, बीपी कैसे चेक कर रहे हैं, बॉडी पार्ट को एग्जामिन कैसे कर रहे हैं, आईज कैसे चेक कर रहे हैं, नोज, एब्डोमेन पे हाथ कैसे रख रहे हैं। आपको पता है डॉक्टर्स हाथ पेट के ऊपर रखते हैं, दे नॉक इट, वो कैसे करना है, वी कॉल्ड इज परकशन। ये सारी चीजें ना, आप कोई फर्स्ट ईयर में कुछ ज्यादा करने की, तूफानी करने के चक्कर में मत जाओ। जस्ट गो एंड ऑब्जर्व हाउ द पेशेंट कम्स एंड हाउ डॉक्टर ट्रीट। ट्रीट मतलब ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, हाउ ही बिहेव इन फ्रंट ऑफ यू, what kind of dressing sense the doctor or sir or madam has acquired, how they talk. We people did my MD in government college, so वहां पे क्या होता था ना कि बहुत सारे पेशेंट रहते थे, दवाइयाँ सस्ती होती थी, 5 रुपए में केस पेपर मिल जाता था, तो 80 80 पेशेंट, 100 100 पेशेंट आ जाते थे। पेशेंट किसके नाम पे है, मेरे नाम पे नहीं है वहां पे, हॉस्पिटल के नाम पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है करके आए, 5 रुपए में होता है करके आए, 10 रुपए में 20 रुपए में ट्रीटमेंट मिल जाता है, एडमिट हो जाते थे। और हमको बड़ा खुद के ऊपर प्राइड होता था, अरे मैंने इतने पेशेंट देखे आज, है ना। बट जब हम प्राइवेट प्रैक्टिस में आते हैं ना, अपनी खुद की क्लिनिक डालते हैं, वहां पे ना पेशेंट से बहुत प्यार से, सलीके से बात करना पड़ता है, नहीं तो पेशेंट आपके पास नहीं रुकेगा। ही विल सी अनदर डॉक्टर, अनदर क्लिनिक, अनदर हॉस्पिटल। तो ये जो बात करने का तरीका है, कम्युनिकेशन स्किल है, वो डेवलप करना पड़ेगा। आप जींस का पैंट, हुडी वाला टी शर्ट पहन के डॉक्टर की चेयर पे नहीं बैठ सकते बच्चा, ध्यान में रखो। मस्त में बियर्ड और दाढ़ी वगैरह बढ़ाई है, ऐसे बाबा वगैरह वल्ली वगैरह बैठ बन के बैठे हैं। कोई फीमेल डॉक्टर ऐसे बाल वगैरह खोल के बैठी हुई है। छोटा बेबी आया, पेशेंट बेबी एनीवन ना, वो छोटा बेबी आया, आपको देख के, आपका विकराल स्वरूप देख के वो जो डरेगा, 1 2 दिन तक वो आंखें नहीं खुलने वाला। यू शुड एक्वायर अ गुड प्रेजेंस इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि पेशेंट जब आता है ना, वो आपको टॉप टू बॉटम ऑब्जर्व करता है। डॉक्टर कैसे बोल रहे हैं, डॉक्टर कैसे बातें कर रहे हैं, डॉक्टर का हेयर स्टाइल कैसा है, डॉक्टर के चश्मे का फ्रेम कैसा है, शूज कैसे पहनना है, डॉक्टर कितना हंसते हैं, हाँ हंसते हैं, कैसे मंद स्मित, बहुत जरूरी है। और गुड लुकिंग भी होना चाहिए। हाँ, बहुत टिप टॉप रहने के लिए रहना चाहिए, एकदम टिप टॉप। दाढ़ी शेव करो, मूछें रखो, ट्रिम करो, शर्ट पैंट इन करो अभी से, फॉर्मल शूज पहनो ज्यादातर पॉसिबल हो, बढ़िया सा रिस्ट वॉच लगाओ, हेयर स्टाइल अच्छी रखो, चलने का बात करने का लहजा सुधारो। फीमेल वैद्य है, बालों को बांधो, सबसे पहली चीज। नहीं तो हम काली माता, हम खोल के घूमेंगे आराम। जीन्स पहन लिए, टॉप पहन लिए, टी शर्ट पहन लिए, कपड़े वाले जूते पहन लिए, दिस इज नॉट अ प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर।
ये सारी चीजें इंजीनियरिंग के बच्चों को सूट करती हैं, अपने को नहीं करेगी। मैं ये सब चीजें अभी से क्यों आदत, धीरे धीरे आदत लगाओ, एकाएक मत लगाओ। अभी से क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एकाएक नहीं होगा ये। आप सोचोगे इंटर्नशिप हो गया कल से चेंज, मैजिक, हैरी पॉटर की एक स्टिक है, सब घुमाया and पूरा का पूरा चेंज। नहीं, आपका बेसिकली आप कहाँ पे हो उस जगह का ध्यान रखो, अकॉर्डिंगली आपका ड्रेसिंग सेंस रखो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पार्टी कर रहे हो, चिल कर रहे हो, डेफिनेटली यू वेयर व्हाट यू वांट। बट इन योर कॉलेज, यू आर इन अ क्लास, यू आर डीलिंग विद द पेशेंट्स। आपके फर्स्ट ईयर से देयर इज अ ऑप्शन दैट यू हैव टू डील विद द पेशेंट। आपको केस लेना है पेशेंट के पास जाके, कैसे करोगे वहां पे हैंडल? देखो कैसा है ना कि आप पेशेंट के पास जा रहे हो, पेशेंट को क्या फील करा के देना है ये आपके ऊपर है। आपको पेशेंट को ये फील कराना है कि नो आई एम एम्बेचर, लुक माई ड्रेसिंग सेंस, हाउ आई एम टॉकिंग, या फिर नहीं आई एम लुक माई ड्रेसिंग सेंस, आई एम लुक लाइक अ डॉक्टर एंड आई एम टॉकिंग लाइक इट इवन। ये आपको करना है, यू डिसाइड। ठीक है। Guru and Adhyatma, again, I am coming in again and again on Guru topic because it's a very important thing. The Guru का मतलब क्या होता है? You know, the Guru means something which is heavy. ग्रेविटेशन का रूल पता है? 12th में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल में, ईच एंड एवरी फोर्स अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, विथ मास, है ना। उसमें से जो जिसका मास ज्यादा होगा वो सामने वाले को खींच लेगा अपने ऊपर, है ना। डेफिनेटली m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर वगैरह वगैरह कुछ तो है ना। हाँ ठीक है, वट एवर फोर्स, बट जिसका मास ज्यादा होगा तो ज्यादा खींच लेगा ना, ही विल पुल इट। तो गुरु इज लाइक दैट, गुरु इज लाइक दैट, इट हैज गॉट गुड मास। आप उसके क्षेत्र में तभी जाओगे या फिर उसके ऑरा में तभी जाओगे जब आपका पहले कुछ मास हो। तो थोड़ा सा अपना ऑरा बढ़ाओ, ठीक है। सो देयर इज वन थिंग रिटन, अ क्वेश्चन फॉर यू, द बेस्ट गुरु इन द वर्ल्ड इज, गेस हु? यस, योरसेल्फ, एक्सपीरियंस एंड द वर्ल्ड एंड टाइम एंड okay, mistakes. Okay, and parents, yes, they are our first guru, not the best one. They are our first guru, not the best one. Best guru, I'm talking about best. Huh? Failure, that is mistakes only. The knowledge, from where you acquire the knowledge. From where you acquire the knowledge. Great. Thank you. Clap for her. You know, Sikh peoples, Punjabi, they treat God as a Guru Granth Sahib. If you people come to me and ask me something कि सर मुझे इस चीज के बारे में नॉलेज दे दो, आई माइट शो सम एटीट्यूड टू यू। कल दूंगा, अभी नहीं, आधा ही दूंगा। आई मे चेक कि नहीं इसको पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना, सच में उसकी योग्यता है क्या, इज ही रियली डिजर्व। बट द बुक्स आर ना, दे आर वेरी डिफरेंट, दे चैलेंज यू, दे चैलेंज यू। माई ईच एंड एवरी पेज इज फॉर यू, रीड मी एंड एक्वायर द नॉलेज हाउ मच यू कैन। कोई आपसे छुपा सकता है कुछ चीजें, नॉलेज शायद नहीं देगा जिलस के मारे, वट एवर, बट बुक्स नेवर डज दिस। सो बुक्स को हमेशा अपने टॉप पे रखो।
बेस्ट गुरु हो सकता है कोई आपका पर्सनल एज ए पर्सन कोई गुरु हो, कुछ टाइम बाद वो पर्सन आपसे विदा हो जाए, आपके साथ नहीं रहेगा, बट ग्रंथ जो है वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। डोंट वरी। सो दे आर देयर बेस्ट गुरु। और उसको जितनी बार पढ़ोगे ना, हर बार आपको कुछ नया ही मिलेगा। ठीक है। इसमें कुछ टाइम मैनेजमेंट की चीजें दी गई। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रह्म मुहूर्त, पॉसिबल होता है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो। द ब्रह्म मुहूर्त इज कॉल्ड एज द ब्रह्मा का मुहूर्त। व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रह्मा का मुहूर्त? ब्रह्मा का मुहूर्त मतलब होता है ऑलमोस्ट 4:30 और 5 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग, एटलीस्ट 4:30 और 5 AM के बीच में समवेयर, एटलीस्ट 1.5 hour बिफोर सनराइज। Why it is called as a Brahma Muhurta? Because it is the period of gaining of knowledge. आपको शायद अभी कोर्स स्टार्ट होगा, कोई चीज आपको बाय हार्ट नहीं हो रही, मगअप नहीं हो रही है, यू गेट दिस टाइम, वेक अप अर्ली इन दिस टाइम एंड स्टार्ट रीडिंग इट। हो जाएगा। हो जाएगा मतलब होना ही होना है। ये ज्ञान का समय होता है। ठीक है, तो ये मेरे लाइफ में इसने बहुत लाइफ चेंजिंग मोमेंट किए हैं, इसलिए आपके बता रहा हूं। एंड दोज हु आर सो मच सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड, वो गूगल का सीईओ हो, सुंदर पिचाई हो, मार्क जुकरबर्ग हो, और एनीवन, they wake up early in the morning, at least 4 a.m. in the morning. So you also want to be a successful, you want to be ahead to a step ahead of everyone from your class or others, you have to take some extra effort. Why clinics? Clinics क्यों जरूरी है? Apart from the college, the one who gives extra get extra. Simple thing. तुम एक्स्ट्रा दोगे नहीं, मुझे सिर्फ कॉलेज ही करना है सर, मुझे नहीं जाना है, ठीक है मत जाओ, नहीं मिलेगा जो एक्स्ट्रा मिल रहा है। सिंपल है। What it does, it develops communication skill with the patients, gives you confidence कि yes, I'm seeing the patient, I know how to check the patient at least. A place where information is transformed to knowledge. ये चार दीवार में बैठ के आपको जो लेक्चर्स मिलेंगे ना, इट विल बी जस्ट मियरली इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत फर्क है। When you understand how to apply the information, then and only it become knowledge. The day you apply in your life that information have you gathered all over your life, उस दिन उसका सक्सेस होगा। So if you going to clinic, you are doing this thing every day, you are applying your information in knowledge, you will be comfort and you will confident about it. You start attaining skill talent in guidance of your guru, so that's a very great place, तो clinics जाना जरूरी है। लास्ट टाइम मैंने एक जगह पे लेक्चर देना शुरू किया था, तो वहां पे एक बच्चे ने खड़ा होकर मुझसे क्वेश्चन पूछा, सर इतना सब आपने बता दिया, चिल नहीं करने का क्या? चिल नहीं करना क्या? मजा नहीं करनी है क्या? हम भी तो स्टूडेंट हैं, हमारी भी तो लाइफ है। सो व्हाई टू वर्क दिस मच हार्ड? बिकॉज वी हैड चोजन इट। हमने खुद ने चूज किया है दिस फील्ड को। किसी ने जबरदस्ती बोला था डॉक्टर बन जा? नहीं, हमने चूज किया है। व्हाई? फर्स्टली, अंडरस्टैंड योर प्लेस एज अ वैद्य इन सोसाइटी, अ प्लेस विच इज आफ्टर गॉड। भगवान के बाद कोई दूसरा नाम होता है तो वो कौन होता है? वैद्य। पीपल कम टू यू डॉक्टर, सब जगह से हार के आपके पास आए, आप भी मना कर दोगे तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, प्लीज सी ये थिंग। रिस्पेक्ट बाय सोसाइटी। रिस्पेक्ट का बात मैं बताता हूँ। इवन टुडे मुझे 7 साल हो गए प्रैक्टिस करके, स्टार्ट करके। एंड इफ आई गो लेट टू माई क्लिनिक, दे आर पेशेंट वेटिंग इन माई ओपीडी।
In that way, there are a small baby from 6 month, 8 month to a younger grandpa of age of 72. And when I enter in my clinic, I put my shoes one side. By that time, all that people just stand up to show respect to me. Even that 72-year-old grandpa. So if society pays so much attention, so much respect, gives money to you, you people should be deserving for that. You should make capable yourself in that way. कि कल को उनका रिस्पेक्ट अगर मुझे मिले ना तो मुझे अंदर से ऐसा कैसा तो गिल्ट वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। भोंदू बनना है क्या अपने को? दिखावा नहीं। उनके रिस्पेक्ट के लिए मुझे उतना काबिल बोलते हैं और शब्द लायकी योग्यता उतनी तो मुझे अर्न करनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाई आई वर्क हार्ड, दैट्स व्हाई यू पीपल गोइंग टू वर्क हार्ड। यस। एंड आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? कॉमर्स वाला नहीं करेगा, वो उसको क्या पड़ा हुआ है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रात को सोते हो 11 बजे, क्लिनिक बंद करके यू आर एट होम, 11 साढ़े 11 बज रहा है, खाने की थाली सामने है, यू गेट अ कॉल, आप थाली सरका देते हो, आप बाइक स्टार्ट करते हो, आप क्लिनिक भागते हो, आ जाओ देखता हूँ मैं क्या हुआ। ये 11:30 की बात नहीं होता, 2 बजे रात को भी आपको जाना पड़ेगा। यू हैव टेकन ओथ, प्रतिज्ञा की है आपने। ध्यान रखो, नो वन कैन रिटायर यू फ्रॉम दिस जॉब। गवर्नमेंट का जॉब नहीं है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस है, मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। आपकी क्लिनिक है, द मोर ओल्डर यू गेट, आपका कंसल्टिंग का चार्जेस बढ़ते जाएगा। वन ऑफ माय गुरु हैज अ कंसल्टिंग ऑफ 2200 रुपीज, कंसल्टिंग चार्जेस आर नॉट मेडिसिन चार्जेस, 2200। मैंने स्टार्ट किया था फ्री में, कंसल्टिंग लेता ही नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया। पेशेंट आ जावे वो पहली बात ना। हाँ, सो आई डिडंट स्टार्ट, कंसल्टिंग चार्ज नहीं ले रहा था। Later on, I started taking 100 rupees, then 200. Now I'm taking 500. Yes, the more senior you get, अरे बहुत knowledgeable और experienced डॉक्टर है, people won't think twice even giving you money, before giving you money, नहीं सोचेंगे। Understand Ayurveda as a science of life। हाँ, आयुर्वेद ना खाली आपके लिए नहीं है, लोगों को मतलब ह्यूमंस बीइंग्स को लगता है कि अर्थ पे खाली हम ही रहते हैं। जब कोरोना हुआ ना तो उनको पता चला कोई और भी रहता है ना। एक्चुअली इतने सालों से ये अलार्म्स आ रहे थे, जंगल के जो एनिमल्स होते रन होके शहर में आते थे, उनको लोग मारते थे वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत कुछ हम मैनसिंग फॉरेस्ट देख रहे हैं, बहुत कुछ चीजें देख रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता था वी आर द ओनली ह्यूमंस हु आर द होल एंड सोल ऑफ दिस यूनिवर्स, हर चीज पे हमारा हक है। ऐसा नहीं है। एंड सिमिलरली आयुर्वेदा इज नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस, it's for plants, it's for animals, and it is for humans also. We call, when Ayurveda, science of Ayurveda applies to plant kingdom, it is called as a Vruksha Ayurveda. Vruksha Ayurveda, yes, there's a branch. You know, means there are Vaidya. There is Ashwa Ayurveda. When the field of Ayurveda applied to Ashwa, means horses. When the field of Ayurveda applied to cows, it is called as Gava Ayurveda. The two brothers, Nakul and Sahadev, you know, out of 5 Pandavas.
The Nakul was talented in Ashwa Ayurved and Sahdev was in Gava Ayurved. They were Vaidya of Gava means guy and Ashwa. So Ayurveda was also for them and is for them. So let have my own experience with Ayurveda. आपके यहाँ से थॉट थोड़े से बदलेंगे. फीवर कोल्ड कफ लूज मोशन ये मैं आयुर्वेदा से ठीक करता हूँ. मेरे घर पे लास्ट 10 to 12 ईयर से किसी ने पैरासिटामोल की टैबलेट भी नहीं ली ना मैंने लिया. मेरे घर पे भी किसी ने नहीं लिया, मेरे पूरे फैमिली में नहीं लिया. आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल पैरासिटामोल. ये जो होता है ना, मतलब मोस्ट कॉमन जो छोटी क्लिनिक चलती है वो क्लिनिक पे यही केसेस आते हैं. फीवर कोल्ड कफ लूज मोशन वॉमिटिंग, ये भी प्योर आयुर्वेदा से ठीक होता है. और जो बोलता है कि सर बहुत टाइम लगता है, कुछ नहीं. जितने में पैरासिटामोल ठीक करेगा उतने में ये भी ठीक करता है. पैरासिटामोल की गोली देने के बाद बुखार उतरता है, फिर से आता है ना. हाँ ठीक है, हमारे में भी ऐसा होता है. लेकिन 1 या 1.5 दिन में पैरासिटामोल पूरा ठीक नहीं करता. मैं 2 दिन में पूरा ठीक करके दूंगा, चैलेंज. I treated malaria, typhoid both with Ayurvedic medicines only. They are different types of fevers only. 36 लूज मोशंस हुए, उतना कंट्रोल किया विदाउट सलाइन. विदाउट सलाइन नहीं लेना, इंट्रावेनस देना नहीं. एनफ, आई एम गिविंग एनफ टू. द सेकंड थिंग इज कैंसर. आई विल कम ऑन इट, but put this thing. Yes, cancer is treated. My guru who departed this world last July, this July only, वैद्य दिलीप गाडगिल सर. आप लोग को अष्टांग हृदय की जो बुक्स होगी उनकी आपको पढ़ने को मिलेगी. He was expert in this field, cancer and kidney diseases. And from him, I also learned this topic. Apart from that, skin disorders, psoriasis. Yes, that's the case. PCOD, polycystic ovarian disease, very common. Nowadays, every third or fourth lady has got this kind of disease, PCOD. Infertility, unable to give new offspring. है ना? Avoiding surgery, lots of surgery I had avoided. My own kaka, uncle, I was in third year UG, and I was in Pune doing my UG, and I got a call from my home कि Kaka is admitted in hospital. He had got some gallbladder में stone है. ऐसा डॉक्टर ने बोला है. He must has to go operation. उनको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा गॉल ब्लैडर. ताबड़तोड़ मैं यहाँ से गया पुणे से, and I visited that hospital where he was admitted. I seen the reports and everything. I talked to my guru also, take consult from him, and then decided कि नहीं, इनको घर पे लेके चलो, कोई जरूरत नहीं है ऑपरेशन करने की. It is something almost 2013-14 की बात है. I took it home. I started medicines. I given Basti, some part of Panchakarma, and started some medication, given some diet. So it is 2013 and now this is 2024. उनका गॉल ब्लैडर सही सलामत है और स्टोन भी छोटा. नहीं जरूरत पड़ी. भरम 60 सर्जरी की जाती है. और इस समय जो सबसे गंदा चल रहा है, दैट इज हिस्टेक्टोमी. यू नो हिस्टेक्टोमी? हाँ, रिमूवल ऑफ यूट्रस. Means if a female have a abnormal bleeding, so the doctor or the consultant gynecologist obstetrician just ask the lady, have you completed with your babies? Means आपको 2-3 बच्चे हैं ना? She said yes. You don't want any baby anymore? Yes. And she has attained the age of almost 35 40 whatever. So what we do? This is dysfunctional uterine bleeding. We must remove this.
uterus from your body, otherwise it's going to harm your body. They consult in this way. And very next day, they just do the surgery and they remove the part. After that, that lady lands in hyperthyroidism, obesity, and hypertension, for which she has to take lifelong medication. Lifelong medication. And then COVID-19 at work, almost a year in ICU during COVID also. दिन में आईसीयू में जॉब में करता था. देयर इज अंधेरी में गोरेगांव, वहां पे जंबो सेंटर था. सो had work almost 12 month in peak of COVID wave. दिन में COVID में ICU and some अपनी clinic. In that time, I had treated almost 10 positive cases of corona with pure Ayurveda. All of them are surviving, all of them are living now. कोई मरा नहीं. The one of the very severe case whose CT severity score was 16 by 25, and she was Ajibai of 62-year-old. She is yet alive. Alive yet. It is a story of 2021 or 20. Very serious condition. Cardiac issues, I already told you. Nephrotic syndromes means failure of kidney. Thyroid issues, hyper and hypothyroidism, and etc. So, if you can read, just read this case. Anyone of you can read. Can you read? A simple है यार. थोड़ा running hand है, but you can read. This is the letter I had got from Tata Hospital, Tata Cancer Research Center at Mumbai. It is written there. Shall I read for you? Dear Dr. Sharma, patient has shown response to your Ayurvedic medicines. Left mass and mediastinal lymph node decreased on CT scan. I would like to know the constituents of your Ayurvedic medicine that is being given to patient. The name of the doctor, Dr. Chandana Adhikari, she was chest medicine physician. The name given also Tata Memorial Hospital, and thoracic medicine was that doctor. She talked to me on call also. And why she did it? Because of this report. In 2017, when I did my internship and I given NEET examination, in that period during the counseling, 1 or 2 months was there in my hand. At that moment, I just got this case that grandpa was 62, 63 year, 69-year-old. Name is written, है ना? Jai Shri Jai Karan Pal. Okay, 69-year-old male, and he has got cancer, lung cancer, adenocarcinoma of lung cancer, and the size was that much. उनका डायग्नोसिस होने में ना कैंसर को टिश्यूज वगैरह निकालने में 1 महीना 15 दिन तक जाता है टाइम. एंड टाटा सेंटर में जहाँ पे बहुत क्राउड होता है वहां पे तो और टाइम जाता है. बट वी वेयर वेरी कंफर्ट कि ये वैसा कुछ तो है, क्योंकि पेट स्कैन में वैसे हमको मिल चुका था. सो आई स्टार्टेड विद माई ट्रीटमेंट. कैंसर टाटा से अभी तक कुछ कैंसर के लिए कीमो रेडिएशन अभी कुछ स्टार्ट नहीं किए थे, बिकॉज दिस पेशेंट हैज प्रीवियसली 3 टाइम टीबी, tuberculosis infection, and they thought it also may be tuberculosis, but it was not tuberculosis, it was a CA of lung. So I thought nahi ye cancer hi hai, because I had seen lots of case before also in under my guru in my clinic. So I started with the medicines before they start with chemo and radios, and they took almost 2 months to decide and confirm that it is CA of lung. Meanwhile, I started, and almost I given the medicine almost 40 days. After 40 days, they repeat this CT scan. This is not first CT scan. This is repeat CT scan. And in that, you can see, compared with the scan of 8
9, 2017, the left pleural base irregular soft tissue mass has reduced marginally to 87 into 36, which was earlier in 100. The mediastinal adenopathy has almost completely resolved. Completely resolved. The cancer mass had been completely resolved. And for this patient, the Tata doctor had told at least the patient will going to survive only 4 to 5 months. बोलते हैं ना कैलकुलेशन होता है डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द मास दे गिव द कैलकुलेशन कि पेशेंट ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 महीने तक सर्वाइव करेगा द पेशेंट सर्वाइव फॉर almost 18 months. And why he died? Because he discontinued medicine for last 8 months. उसने मेडिसिन लिया ही नहीं इसको बताया नहीं गया था कि इसको कैंसर है क्योंकि बता देंगे तो मेंटल स्ट्रेस की वजह से वो टाइम से पहले मर जाता उसके सन ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि आप मुझसे सब कम्युनिकेट करो उनको मत बताओ so we didn't tell them and because of that he ran away to his village he did lots of other things and he discontinued medicine for 8 months. After 8 months, he started showing some symptoms. His cancer mass was now revoked. He landed in stage 4 cancer, which was metastasis to liver and pancreas. He operated in KM hospital. For first, they removed some part of intestine and he kept them in ICU. On the very fourth day, again they have to operate him and in second operation he didn't survive he lost so he lost his life just because he discontinued medicine almost for 8 months if it continued might it had survived how much year I don't know he may had because he was around 69-year-old तो वो आराम से 10-12 साल और जीते थे and might he died in his natural death स्किन डिसऑर्डर सोरियोसिस आपको कुछ पाँव का केस है Dr. Priyanka is colleague to me during my PG. She was colleague to me and she also handled this case along with me. Means we both handled the case along with our guru, Dr. Rampurkar sir. There was a patient, he was a government servant, used to come in our OPD at Podar. And this was the case. पेशेंट के पाँव में से ना ऐसा लिक्विड निकलता था ऐसा स्किन डिसऑर्डर था उसको सो व्हाट ही यूज्ड टू डू he used to wear a plastic socks. He was a government servant. तो एंड ऑन ग्रेट पोस्ट अच्छा पोस्ट था उसको गवर्नमेंट में बांधकाम विभाग पता है ना उसमें था वो तो प्लास्टिक का मोजा पहनता था उसके ऊपर कपड़े का मोजा पहनता था एंड देन उसके ऊपर सैंडल और शूज वगैरह पहन के ऑफिस में आता था बहुत ही एम्बेरसिंग जब ये निकालता था वो सारी चीजें हमारे ओपीडी में तो उसमें से स्मेल और ये टप 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 करके पूरा गीला पानी वगैरह एंड ऑल एवरीथिंग वाज देयर ये ऊपर से नीचे आप देख रहे हो पेशेंट हील होते होते लास्ट के उसके इमेजेस यू कैन सी इट्स वेरी क्लीन उसको दोबारा कभी वो बीमारी नहीं हुई प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन प्योर इट्स अ प्लांटर सोरियासिस वी कॉल्ड इट एज अ प्लांटर सोरियासिस अभी लेटेस्ट मैंने किया है वो दिखाता हूँ ये केस देखो ये केस अभी 6 महीने पहले मेरे पास आया था इट वॉज द केस ऑफ डायबिटिक फूड ठीक है एंड पेशेंट के पैर में ऐसा हो गया था कुछ तो पेशेंट ये ऊपर वाला जो पैर है ना ऊपर वाला नीचे का नहीं बोल रहा हूँ तो पूरा ब्लैकिश डिस्कलरेशन है स्वेलिंग है देख रहा है आपको और अंगूठे के पास पे उसको एक वुंड है वो वुंड ऊपर से और नीचे से ऐसा पूरा होल है परफोरेटेड है एंड उसका सेकंड फिंगर देख रहे हो आप दिस इज कॉल्ड डायबिटिक फूड द पेशेंट वाज हाईली डायबिटिक and the allopathy doctor has suggested to ampute the thumb great toe and the next toe ampute means they want to cut it अगर नहीं करेंगे तो जो पॉइजन है या फिर जो सेप्टिसीमिया पूरे बॉडी में फैलेगा देन यू हैव टू एम्प्यूट द होल लेग एंड इन सच कंडीशन द पेशेंट वाज came to my clinic
and we work almost 4 to 5 months on it, and we successfully save the patient without any amputation. ये जो नीचे देख रहे हो ना, उसी पेशेंट का थंब है, और ऊपर के थंब में देखो आपको होल दिख रहा है बड़ा वाला, नीचे आपको पूरा क्लियर है वो। नेक्स्ट इमेज में भी आपका सेकंड फिंगर दिख रहा है, कितना गंदा। ये पेशेंट से फाउल स्मेल होता था, ऐसा पानी निकलता था टप 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 टप, डिस्चार्ज एंड गंदा स्मेल। डायबिटिक वुंड मतलब कोई भी डॉक्टर जल्दी हैंडल नहीं करते, क्योंकि इनका पहले शुगर कंट्रोल करना पड़ता है एंड देन वुंड ट्रीट करना पड़ता है। तो ये केस हैंडल हो गई, हमने उसको सेव किया, एंड उसका पाँव अभी ऐसा हो गया है। शी इज कम्प्लीटली रिजॉल्व फ्रॉम दैट। इट टुक ऑलमोस्ट 5 मंथ, बट हमने उसका अंगूठा कटने से बचा दिया। दैट लेडी वॉज वेरी हॉरिबल कि नहीं डॉक्टर मेरा अंगूठा नहीं कटना है। शी वॉज 56 ईयर फीमेल। तो मैं आपको सर्जिकल केस भी बता रहा हूँ। ये सोरेसिस का एक और केस है। नीचे का जो इमेज है वो प्राइमरी सिम्टम्स है, ऊपर धीरे धीरे ट्रीट हो गया वो केस। It was 14-year-old psoriatic case. He was getting treatment almost 10 to 12 years from KM Hospital, Mumbai, and then came to Poddar. ऊपर का इमेज में आपको उसका वो पेट का है, ये पूरा जो नीचे के हैं वो उसका गंदा इमेज है। वो उसके पूरे बॉडी से पाउडर निकलता था स्किन ड्राई होके। सीवियर काइंड ऑफ स्किन डिसऑर्डर। ये एक सोशल स्टिग्मा देता, आप किसी से हैंडशेक भी नहीं कर सकते। सो हियर मैंने अपने कुछ जितने केस देखे थे उसमें से कुछ लाया, सब नहीं लाने का टाइम है। मैं आपको दिखाऊं तो पूरा रात होएगा, बहुत कुछ डिस्कशन करने को है। बट येट यू पीपल डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू इन योर फ्यूचर। आयुर्वेदा करना है, इंटीग्रेटेड करना है, एलोपैथी करना है, इट्स अप टू यू। वट एवर आई हैड गिवन टू यू पीपल। भिषग घोषु मतिमानत स्वगुण संपत्ति परम प्रयत्नम आतिष्ठेत प्राणदा स्यात् यथा नृणाम। The word that I had highlighted, परम प्रयत्नम आतिष्ठेत। परम का मतलब होता है टेक as much as effort you can take to be a good vaidya. परम प्रयत्नम आतिष्ठेत। Don't stop and don't satisfy whatever knowledge you will gain in some days. आपको आगे बढ़ते रहना है, और इतना ज्यादा सेटिस्फाई मतलब आपको सेटिस्फाई अपने पेशेंट को करना है, ये बात ध्यान में रखो, आप सेटिस्फाई नहीं होना है। Lawyer and doctors, they say कि we practice, we never say that we become perfect, and we will be definitely never, because the knowledge of Ayurveda is ना अनंत। 2-3 लाइफ कम पड़ जाएगी। तो जितना नॉलेज है उसके बेसिस पे हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे जैसे पेशेंट हम और ज्यादा देखेंगे, हम और ज्यादा पेशेंट को एक्सपोजर करेंगे, हमारा नॉलेज और ज्यादा एक्सप्लोर होगा। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, and all the best to you all for your bright future. And I hope out of this 100 out of 100, all you come as a Vaidya. Thank you. Thank you so much, sir. Please be seated. Thank you so much, such a wonderful lecture. uh, अभी मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया है कि पहले मैं डॉक्टर लगाती थी, कभी वैद्य लगाती थी, लेकिन अब से मैं वैद्य ही लगाऊंगी। ठीक है। आई रिक्वेस्ट टू डॉक्टर सॉरी वैद्य विजय पाटिल सर to say such a few words for Vaidya Savesh Sharma sir. देखो, लाइव लेक्चर का ये मजा होता है। आप कितने भी इन्फ्लुएंसर से कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, लाइव लाइव होता है। वहां पे वो इमोशंस होते हैं बोलने वाले के चेहरे पर और सुनने वाले के चेहरे पर।
तो इसमें कुछ चीजें जो मैं सर ने बताई है वही थोड़ी रिवाइज करना चाहूंगा, कि जैसे कि सर ने बताया गुरु एंड अध्यात्म। यस। तो जैसे बताया सर ने कि बुक्स, देखो हमेशा बुक्स की जेरोक्स और बुक्स, इसमें डिफरेंस है। बुक्स बुक्स होती है, जेरोक्स जेरोक्स होता है। जेरोक्स जितना हम मतलब देखेंगे बहुत कम उसको पढ़ा जाता है, लेकिन बुक्स जो है ना वो अपने ओर खींचते हैं, लेकिन हम खींचे जाते नहीं हैं, हम उससे दूर रहते हैं। या तो हमें लगता है कि बस हमारे पास में होने से सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। और वो बुक समझने के लिए सब गुरु की जरूरत होती है। यस। कितने भी 5G 6G कितने भी जी आ जाए, गुरु जी के सिवा ज्ञान नहीं है। यस। उसके साथ में आयुर्वेद जो सर ने बताया, मतलब फीवर से लेके कैंसर तक सब कुछ के लिए सब कुछ है, वो आयुर्वेद है। और वो भले ही आप प्रैक्टिस कुछ भी करो, जैसे सर ने बताया, मैं भी मेरा भी यही सेंटेंस होता है कि आप भले ही कुछ भी करो, आयुर्वेद पढ़ लो, आयुर्वेद समझ लो, बाद में कुछ भी करो। अभी से डिसाइड मत करो एलोपैथी करना है क्या करना है, जो भी कुछ होगा आपके पास दिमाग में रहने दो, लेकिन पढ़ लो। पढ़ने के बाद फिर सोचो क्या करना है, क्योंकि रिस्पेक्ट आपको उसी से मिलेंगी जो आप काम करेंगे आगे जाके। यस। देखो ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो रिस्पेक्ट मांगते हैं, लेकिन डॉक्टर को रिस्पेक्ट मांगनी नहीं पड़ती है, वो मिल जाती है। आपकी पीढ़ी जो है ना, जैसे उस दिन बात हुई थी हैरी पॉटर वाली पीढ़ी पीढ़ी है, जैसे जादू की कांडी से सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। डे वन से जो कुछ करना है डे वन से करना पड़ेगा। यस। और उसके लिए मेहनत जरूरी है। और आप अगर मेडिकल फैकल्टी में आए हो, तो जैसे सर ने बताया कि आपको आज से लेके जब तक आप जिंदा हो तब तक मेहनत करनी है तैयार? यस, क्योंकि हर दिन नया होने वाला है, हर दिन चैलेंजिंग होने वाला है। इसके साथ में सर से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, सर को पूछ के सबके सामने, इसलिए क्योंकि मैंने बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर्स रिकॉर्ड किए, आपने देखे भी होंगे, लेकिन आपके सामने मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या मैं वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए, बीएमएस के स्टूडेंट्स के लिए यूट्यूब पे अपलोड कर सकता हूँ? यस सर। ठीक है। यस। इसलिए क्योंकि सर ने जो बताया है ना, हर बच्चे के लिए, बीएमएस के हर बच्चे के लिए, आपको तो मालूम हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैंने अब तक किसी भी टीचर का, किसी भी दूसरे इसका मेरे चैनल पे अपलोड नहीं किया है सर से, इसलिए सबके सामने पूछ लिया, क्योंकि बाद में मुझे भी गिल्ट ना हो कि मैंने क्यों कर दिया। रिकॉर्ड करने से भी मैं हर टीचर से पूछ लेता हूँ कि यह क्या मैं कर सकता हूँ, यस और नो। तो हाँ, तो कर लेता हूँ। अगर सर को मैं बाद में भी पूछूंगा अभी कि यस और नो, तो अगर वो हाँ होगा सर का तो ही मैं करूंगा, लेकिन आपको जो मिल गया है उसको साथ में रखो हमेशा के लिए। इसके साथ में सर से, मतलब मैं सर के साथ 3 दिन रहा हूँ, लेकिन तब जो मैंने सर को देखा था और आज जो देखा हूँ, बहुत बहुत मैंने मतलब, क्योंकि मैं तब एग्जाम के लिए गया था। यस। सर के कॉलेज में, वहां पे बीएमएस के बच्चों की संस्कृत के एग्जाम के लिए मैं गया था। और वो एग्जाम में मतलब आदमी इतना उलझ जाता है वो सब कुछ करते हुए कि इंटरेक्शन उतना हो नहीं पाता है। लेकिन फिर भी मैंने वहां पे पूछा था कि सर बाद में क्या करते हैं, तो प्रैक्टिस करते हैं। तो मुझे एक अंदाजा था मैडम से भी कि सर का जो है बहुत कुछ है। और जब आज मुझे सब सुबह मालूम हुआ कि सर का लेक्चर है, तो मैं 100% रुकूंगा और सुनूंगा, और उसको मेरे साथ में रखूंगा, भले ही वो मेरे साथ में क्यों ना रहे। और किसी को अगर देने की मतलब मेरी इच्छा है, सर से अगर रिक्वेस्ट में करूंगा बाद में, और तो अगर होगा तो मैं वो करूंगा, मेरे तो मैं कर ही रहा हूँ। देखो मेरा यही सोच होता है कि जो मिले अच्छा है तो सबको बांटो। अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो मुझे बताओ, बाकी किसी से बता के कुछ फायदा नहीं, मुझे बताएंगे तो मैं उसको अपग्रेड करूंगा, कुछ अच्छा कर पाऊंगा उसमें। तो सर ने जो कुछ आज लेक्चर लिया है बहुत बहुत बढ़िया है, जो मतलब एज ए स्टूडेंट, मतलब आप जो बच्चे यहाँ पे हों और आप जब डॉक्टर बनेंगे, मतलब ये जो प्रोसेस है ये कैसी होनी चाहिए, वो आज से अपने अगर सोच लिया
तो बहुत कुछ बन पाएंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रेरणा मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा ऑफ थैंक्स के लिए। मैडम आइए प्लीज। गुड आफ्टरनून। अब तो आपको पता चल गया कि वैद्य सर्वेश शर्मा सर मेरे कलीग है। तो आपको पता चल गया होगा कि फर्स्ट डे से मैं आपको ऐसी सिमिलर चीजें बता रही हूँ। पता चला ना, पहले दिन मैंने आपको इंट्रोड्यूस कैसे किया था खुद को, वैद्य। क्योंकि ये भी, जब मैं पीजी करने गई फर्स्ट डे पे, मैं इनको जानती नहीं थी। मेरे गाइड मिलिंद रामपुरकर सर, वो भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर थे नांदेड़ में। और मेरा बस इतना था, मुझे आयुर्वेद समझता था बहुत, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। यूजुअली मैं क्लिनिक्स करती थी। सब जो वहां पे सीखा समझा पता था, लेकिन एक होता है ना कंसेप्ट समझना, चीजें पता होना अलग बात है, और वो क्यों होती है वो पता होना अलग बात होती है। और जब मैं पीजी करने गई, तब मेरे कलीग एंड मेरे गाइड, मेरे गुरु डॉक्टर वैद्य मिलिंद रामपुरकर सर, इनके साथ रहने के बाद मेरा संस्कृत का जो भी डर था वो चला गया। जो मेरा पहले से हौसला था कि मुझे आयुर्वेद ही करना है, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। और तब से आज तक मैं जो भी हूँ, इन दोनों की वजह से हूँ। मुझे बहुत एक्चुअली प्राउड भी फील हो रहा है, ओवरवेलमिंग फील हो रहा है कि मैं आज मेरे कलीग को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। उनको इट इज माय प्रिविलेज टू गिव देम अ वोट ऑफ थैंक। वो भी मतलब फॉर्मली दे रही हूँ, लेकिन अच्छी तरीके से, मतलब आपके लिए इट वाज अ माय चॉइस कि मैं सर को यहाँ पे बुलाऊं, एंड आई फील दैट कि यस, आई हैव डन द राइट थिंग। सो विल गेट टू द formal vote of thanks. On the behalf of Government Ayurved College, Baramati, Pune, Honorable Dr. Anil Kaya sir, our academic in charge, Dr. Suryakant Rokre sir, and thank you so much, sir, for sharing such valuable insights on this topic, Vidyarthi to Vaidya. Your words have truly highlighted the journey of dedication, learning, and resilience required to become a healer in society. Your talk has inspired us to embrace this transformative journey with renewed passion and commitment. We are grateful for the wisdom you have shared, which will certainly guide us in our own path to becoming compassionate and skilled professional. Thank you once again for your time, knowledge, and encouragement, sir. Thank you so much. Now over to Dr. Kalyani ma'am. Sorry. Sure. That's one thing that I was missing. Journey is a long process. कभी ऐसा लगेगा लाइफ में ना कि बहुत बुरा हो रहा है, घर पे अच्छा नहीं है, पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, कोई गया कोई आया, है ना। इसको मत रोकना, जो आज स्टार्ट किया, जो मन में फीलिंग आई, क्योंकि नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर लाइफ। जब क्लास में बैठो, जब घर पे पढ़ो ना, तो इसलिए मत पढ़ो कि एग्जाम देना है। थिंक लाइक दैट कि इसके साथ मुझे पूरी अपनी लाइफ निकालनी है। तो कभी केटी भी लग जाए ना, तो ऐसा हरास मत होना आप लोग। इट्स ओके, नहीं पढ़ पाया, हार्ड गया एग्जाम, डरना मत। मतलब बहुत ज्यादा होगा तो फेल होगा ना, लेकिन जिसके साथ मुझे मेरी पूरी लाइफ निकालनी है, उसके साथ 6 महीने का केटी, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आई विल बी अ गुड वैद्य इन ऑल द वे। लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं होती, कभी कभी होगा कि शायद बहुत बुरा चल रहा है घर पे, पर्सनल लाइफ में, आज कॉलेज नहीं जाते, नहीं चलेगा, लाइफ है रे, सांस लेना कोई छोड़ सकता है क्या? द शो मस्ट गो ऑन। समझा क्या? हाँ, तो लाइफ निकालनी जिस चीज के साथ, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। सर ने बोला ना, वो जेरोक्स की बुक और असली बुक, तुम जेरोक्स की बुक लेके ना, तुम्हारा एटीट्यूड साबित करते हो। यू आर वेरी केयरलेस अबाउट दैट बुक।
एंड दैट्स व्हाई यू बाइंग दैट जेरोक्स वाली बुक। मेरे को लाखों करोड़ों का व्यापार करना है आगे को, मैं 50 रुपए के लिए जेरोक्स का बुक ले रहा हूँ। ये आपका एटीट्यूड है। थोड़ा सोचो अलग ही दिमाग से पहला। सो एक बात ध्यान रखो, क्लास में बैठ रहे हो तो, घर पे पढ़ाई कर रहे हो तो, क्लिनिक जा रहे हो, मुझे इसके साथ ये एग्जाम खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं है। मुझे मेरा पूरा क्या निकालना है इसके साथ, लाइफ निकालना है। कितना, कब तक, टिल माई लास्ट ब्रीथ। इसीलिए टाइम का बॉन्डेज अपने आप को मत लगाना। किसी को जल्दी एक्वायर हो रहा है, किसी को लेट एक्वायर होगा, बट एक्वायर तो करना है। इट्स ओके। सब एक बुद्धि के तो नहीं होते। हाथ की 5 उंगलियां नहीं होती, बुद्धि कैसे होंगे? सिंपल है। तो डरो मत, है ना, एकदम जो करना परफेक्ट करना। इतना परफेक्ट हो जाओ ना कि शहर में या फिर तुम्हारे एरिया में 5 आयुर्वेदिक वैद्यों का नाम लेना तो 5 में से एक तुम रहना चाहिए। तब कुछ मतलब है ना, टॉप पे रहोगे ऐसे। रिस्पॉन्स रहेगा ना, डिमांड रहेगा। अच्छा, I would like to ask one thing. How's the Josh? तो अभी MBBS और BMS? वेरी गुड। सर का यहाँ पे आना सफल हुआ। ओवर टू डॉक्टर कल्याणी मैम, सॉरी वैद्य कल्याणी मैम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। सर ही इज अ वेरी गुड टीचर एंड वेरी टीचर से भी ज्यादा गुड मतलब वैद्य है। तो आप सर मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं, जो भी आप मुंबई में रहते हो तो उनके पास सीखने के लिए जा सकते हो। सर पहले दिन नहीं बोलेंगे, दूसरे दिन जैसे सर ने बोला है तो सर को बोलना है आपको कि महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार मैं आता हूँ या मैं आती हूँ। ठीक है? ही इज अ वेरी गुड टीचर एंड वैद्य। थैंक यू सर। थैंक यू। जाओ खाना खाइए, आप लोग भूख लगी होगी 1 बज के। कितने बजे बुलाने को? 2:30। सर, हाँ सर। आपको नेक्स्ट गेस्ट लेक्चर है तो 2:30 को आपको रिटर्न यहाँ पे ही आना है। ठीक है?